What is AI? What is artificial intelligence? क्या आपके जीवन में परंपरा और आधुनिकता दोनों का सहअस्तित्व दिखता है, कोएग्जिस्टेंस? ये बताइए कि जैसे अभी कुछ समय पहले जो है कुछ एक ऐसे केसेस आए जिसमें क्या है कि महिलाओं ने जब सिलेक्शन दिया तो सिलेक्शन के बाद जो है अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। हस्बैंड के मन मस्तिष्क में अपने सफल पत्नी के लिए एक नकारात्मक भाव कुछ हद तक जो है वो क्या है कि आ गया। अगर आपकी शादी हो गई और आपके हस्बैंड ने कहा कि नहीं जॉब नहीं करना है और एकदम आर्डेंट है वो कि जॉब करना ही नहीं है, हमें इसमें खतरा दिखता है अपने भविष्य का, तो आप उस जगह पे क्या करोगे? आपका सिलेक्शन भी हो चुका है। May I come in, ma'am? Yes, please come in. Good morning, ma'am. Good sir. morning. आइए बैठिए. Thank you, ma'am. So your preferred medium for the interview is Hindi, English or bilingual? Ma'am, bilingual would be fine. Okay. आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम और पता बताए बगैर. Ma'am, I've done my schooling from St. Mary's Convent, Inter College, Prayagraj. Then post that, I've done my graduation from University of Allahabad. And since then, I've been preparing for civil services. I've appeared for other state civil services examinations also. And my hobbies include watching cartoons. Okay. So in which subject you are graduate? Ma'am, I've done my BSc in Physics, Chemistry and Maths. BSc in Physics, Chemistry and Math. Okay. So you must have studied about artificial intelligence. Yes, ma'am. Okay. What is AI? What is artificial intelligence? Basically, it's a process where we enable our machines to have components or to be able to perform tasks that humans can do. So it's enabling our machines. And what is the difference between AI and machine learning? Ma'am, machine learning is basically based on a analysis of certain data. Data analytics is there. Although I find minor differences between the two, there are correlative technologies and they are basically used often relative to each other. So is there any AI data center in Uttar Pradesh? Ma'am, can I guess? I think. No, कोई बात नहीं. Tell me, what is the AI policy of UP government? Uttar Pradesh government. Ma'am, Which city will be developed as AI city? Lucknow. And where UP government will establish a university based on AI? I think it's Ghaziabad. No. How many solar cities are proposed in Uttar Pradesh? 8 solar cities. 8. 8. Okay. Tell me the name of some of them. Mostly in the Bundelkhand region. Jalaun, Jhansi, Lalitpur. I'm not What is aware. green hydrogen? Ma'am, it's the hydrogen that we prepare through the renewable sources. We use the energy through the renewable sources for the electrolysis of water. And grey hydrogen? We use the fossil fuels, the petroleum and the other conventional forms of energy. Okay. What is the status of Uttar Pradesh in ethanol production? Ma'am, it's performing well in the recent few budgets also. There has been targets 25% or 30% ethanol mixture with alcohol, with petrol, so as to produce like good sources of energy for. Okay, so in ethanol production, Uttar Pradesh is on top, number 2, 3, 4. You have any idea? No, ma'am. No problem. What is molecular gastronomy? Sorry, ma'am, not aware. Why Lucknow is creative city of gastronomy? UNESCO awarded Yes, Lucknow as creative city of gastronomy. Why Lucknow is awarded as this tag? Because of the cuisines of Lucknow. Only cuisine? Ma'am, Okay. What is food culture? Ma'am, it's basically the place those who are known for their food culture. For example, the Awadh region, they're basically known for their. Like we say, na, our food culture is like this. Our food culture is like that. Our food culture is not very healthy. Kind of sentences. Then what do you understand by this term, food culture? Okay, no problem. What is political culture? Ma'am, basically the policies that we use during in our politics, political culture. Okay, means. okay. Thank you, sir. आपके हॉबी है कार्टून? Yes.
कोई ऐसा कार्टून का नाम बताइए जिससे साइंटिफिक अप्रोच सीखने को मिलता है। सर टॉम एंड जेरी इज़ वन ऑफ द कार्टून्स। हम्म, सर इसमें हम देखते हैं जो टॉम एंड जेरी होते हैं वो लोग हमेशा आपस में लड़ते हैं एंड जेरी जो होता है वो हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट के थ्रू टॉम को डिफीट करने की कोशिश करता है। दो देयर इज सिग्निफिकेंट वेरिएशन, उनके साइजेस में बहुत डिफरेंस है। हाँ। जेरी छोटे होने के बावजूद वो साइंटिफिक तरीके से टॉम को हराता है अक्सर। एंड सर इसके अलावा भी हमारे पास और भी कार्टून्स हैं लाइक डोरेमोन, जहाँ पे उनके पास गैजेट्स होते हैं। और तो सर इनके थ्रू हमें टॉम एंड जेरी पे आरोप लगता है कि सबसे ज्यादा हिंसक है ये आरोप अक्सर लगता है। ये क्यों लगता है आरोप ये? सर क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपस में उन लोगों को हमेशा लड़ते झगड़ते ही दिखाया जाता है। बहुत फिजिकल मतलब वायलेंस में वो हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। उनको मतलब आपस में एक दूसरे को हराने के लिए दे ऑलवेज रिलाई ऑन फिजिकल वायलेंस ओनली, कि कैसे एक दूसरे को हम फिजिकली हर्ट करके अपने मिशन में सक्सीड हो सके। मोटू पतलू आपने देखा होगा, यस सर। क्या संदेश देता वो एक कार्टून? सर मैं बहुत ज़्यादा तो ये वाला कार्टून नहीं देखती हूँ, बट ये थोड़ा सा सोशल हार्मनी पे भी है। आपस में हम कैसे सहयोग बढ़ा सकते हैं इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। और सर प्लस ये भी है कि हमें किसी को फिज़िकल अपीयरेंस के बेसिस पे नहीं जज करना चाहिए। ये भी आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो हमें इस कार्टून के थ्रू मिलता है। बच्चों को क्या सीखने को मिलता है? जब अक्सर बच्चे कार्टून देखते हैं, लगता है कि हर गार्जियन को इस कार्टून की जो तमाम चैनल हैं उसको प्रमोट करना चाहिए। सर मुझे लगता है कि बच्चों को हम कार्टून्स के माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। सर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी हम कार्टून्स का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। हम उन्हें अच्छी वैल्यूज़, मॉरल्स और कल्चर सिखाने के लिए हम कार्टून्स का यूज़ कर सकते हैं। गुड हैबिट्स के लिए आजकल सर कार्टून्स का हम उपयोग करते हैं कि हम बच्चों को दिखाएं कि कैसे उन्हें अपने अगल बगल स्वच्छता मेंटेन करनी चाहिए। गुड हैबिट्स, मैनर्स एंड कल्चर्स के बारे में हम उन्हें कार्टून से बता सकते हैं। सर बट इसके कॉन्स भी हैं, बच्चे उससे गलत चीज़ें भी सीख रहे हैं। एक गलत लैंग्वेज का भी कभी कभी वो पिकअप कर लेते हैं। तो आई थिंक दीज आर फ्यू एरियाज जहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी इनके क्रिएटर्स हैं, उनको वर्क करना चाहिए सो दैट दिस इज इम्प्रूव्ड। ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार की कोशिश है कि संस्कृति का संरक्षण किया जाए और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत की जाए, लेकिन आरोप लग रहा है धर्मनिरपेक्षता पे कि धर्मनिरपेक्षता सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए एक चुनौती है। ये क्या आप इससे सहमत है? सर कैन यू जस्ट रिपीट इट? मैंने जो सेकुलरिज्म है, जितनी भी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, ठीक है, उनके लिए एक चुनौती खड़ा कर दिया ये। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं राम राम, इंशाल्लाह सब कुछ होगा। ये मेरे अभिवादन का तरीका है, बात करने का तरीका है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता ये कहता है कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए आपको। क्या आप इससे सहमत है? नहीं सर, मेरा ऐसा मानना नहीं है। सर हम अपने कल्चरल संरक्षण के साथ साथ हम अपनी जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के साथ साथ भी हम सेक्युलर रह सकते हैं, हम टॉलरेंट रह सकते हैं। सर हमारे, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश इतिहास काल से अपनी संस्कृति के लिए ही जाना जाता है, अपनी सेक्युलरिस्ट फीचर्स के लिए जाना जाता है। और सर ये हमेशा से अनादिकाल से कोएग्जिस्ट करती आई हैं सर, कभी इनमें मतभेद नहीं ज़्यादा देखा जाए तो हुआ। तो सर आई थिंक कि ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, दे कैन वर्क टुगेदर। आई डोंट सी सेक्युलरिज्म ऑपोजिंग कल्चरल हेरिटेज एंड इट्स कंजर्वेशन। ट्रेडिशन, परंपरा। सर ट्रेडिशंस आर बेसिकली रिचुअल्स दैट हैव बीन फॉलोड सिंस एंशिएंट टाइम्स, जो हम प्रथाएं फॉलो करते आए हैं, जो कहीं आउट ऑफ प्रैक्टिस दे हैव नॉट बीन मेंशन्ड इन एनी स्क्रिप्चर्स एज सच, बट दे हैव बीन फॉलोड सिंस एंशिएंट टाइम्स एज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हैबिट। क्या लगता है आपको कि परंपरा और तर्क में एक विरोध है? नहीं सर, हमारी समझ में कभी कभार चूक हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उसमें विरोधाभास है। हमारी जो परंपराएं हैं वो हमारे जो एंशिएंट सेजेस हैं उन्होंने काफ़ी सोच समझ के परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइस किया था, हमारी जो परंपराएं थी। तो आई डोंट सी एनी कॉन्ट्रडिक्शंस अमंग देम। क्या आपके जीवन में परंपरा और आधुनिकता दोनों का सहअस्तित्व दिखता है, कोई एग्जिस्टेंस? यस सर। कैसे? एग्जाम्पल सकते हो? सर जैसे कि हम अपने जो मेरी जो कल्चरल और फैमिली वैल्यूज़ हैं,
मैं उनको कैरी फॉरवर्ड भी करती हूँ, बट एट द सेम टाइम्स आई ऑल्सो, जैसे सर हमारे यहाँ अभिवादन में प्रणाम बोलते हैं, तो मैं इनका भी यूज़ करती हूँ, एंड प्लस आई ऑल्सो यूज़ जेनजी लिंगोस. सो आई थिंक आई एम यूजिंग बोथ एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन द टू. ओके बेटा, थैंक यू. आप निवास करती हैं कटरा में, प्रयागराज, और इंटरव्यू दे रही हैं सिविल लाइंस में. ये कटरा और सिविल लाइंस क्या होता है? बहुत सारे शहरों में आप कटरा और सिविल लाइंस सुनते होंगे, तो कटरा सिविल लाइंस एक्चुअली है क्या ये? सर ये एक सिटी का सेक्टोरल डिविजन्स है. सर ये लाइक ब्रिटिश टाइम से ही जो हमारा जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और ज़्यादा प्रिविलेज एरिया होता था उसे सिविल लाइंस के रूप में इस्टेब्लिश किया जाता था. तो हमें मोस्टली शहरों में एक ऐसा जो पॉश एरिया टाइप्स होता है वो हमें सिविल लाइंस के रूप में हम देखते हैं कि जाना जाता है. एंड सर कटरा भी सर जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी कटरा नाम की जगह है, बट सर मुझे इसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं है कि. अच्छा, एक ये बताइए कि जैसे अभी कुछ समय पहले जो है कुछ एक ऐसे केसेस आए जिसमें क्या है कि महिलाओं ने जब सिलेक्शन लिया तो सिलेक्शन के बाद जो है अपने हस्बैंड को छोड़ दिया. हस्बैंड के मन मस्तिष्क में अपने सफल पत्नी के लिए एक नकारात्मक भाव कुछ हद तक जो है वो कह के आ गया. अगर आपकी शादी हो गई और आपके हस्बैंड ने कहा कि नहीं जॉब नहीं करना है, और एकदम आर्डेंट है वो कि जॉब करना ही नहीं है, हमें इसमें खतरा दिखता है अपने भविष्य का, तो आप उस जगह पे क्या करोगे? आपका सिलेक्शन भी हो चुका है. सर मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूँगी, और सर मैं चाहूँगी कि हमारे रिश्ते की नींव मजबूत हो, जहाँ उन्हें संशय ना हो इस चीज़ को लेकर कि मैं आगे चल के डिसलॉयल रहूँगी, ऐसा कोई विश्वास. एक उपाय बता सकती हैं कि आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? कोई उपाय आपके पास है? सर आई थिंक बेस्ट तरीका होता है कि जितनी आपस में ट्रांसपेरेंसी रहे, आपस में संवाद रहे, कम्युनिकेशन गैप ना हो. अगर कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसे आपस में बातचीत करके सॉल्व कर लिया जाए, रादर दैन वो गल्फ को हम और बड़ा होने दें, सो दैट बाद में चल के ये और दिक्कत बने. तो सर मुझे लगता है कि संवाद हर समस्या का एक बहुत ही अच्छा, आपका नाम आकृति है, आपको कार्टून देखना पसंद है. यस. आकृति जब विकृत होती है तभी कार्टून बनता है, तो आप को अगर अपनी आकृति में विकृति लाकर अगर कोई एक कार्टून बनाना हो अपने आप को, तो कौन से कार्टून में ढलना पसंद करेंगे आप? सर जेरी. जेरी में. अच्छा, ये बताइए कि आप जो है प्रयागराज से बिलोंग करती हैं, तो प्रयागराज का जो है पहले इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज हो गया. आपको क्या लगता है ये नाम में जो चेंजेज आते हैं, नाम में जो परिवर्तन किया जाता है, क्या ये करना सही है? और सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों? सर मुझे लगता है कि सर ये इनके दो कारण होते हैं. सर पहला तो एक होता है कि कल्चरल रिवाइवल इनके पीछे का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी स्थान की अगर कोई पास्ट में ख्याति रही है कि किन्हीं कारणों की वजह से, तो हम चाहते हैं कि अब की जनरेशन जो इसको नहीं जान रही है तो उसका हम कल्चरल रिवाइवल करें. एंड सेकेंड, ये सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी लिए गए डिसीजंस हैं जो कि उनके पास पावर्स होते हैं, तो इट्स लीगल ऑल्सो. तो सर मुझे लगता है कि ये ठीक है. आई थिंक नाम अगर महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वर्तमान सरकार सही है या इसके पहले की जो सरकार? सर सरकारें हमेशा ही महिलाओं के प्रति अच्छी पॉलिसीज़ बनाती आई हैं. उनके पास अच्छे लाइक प्रावधान रहे हैं महिलाओं के लिए, चाहे कोई भी सरकार रही हो. सर थोड़ी बहुत त्रुटि अगर कहीं आती है तो वो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में आती है. तो सर मुझे लगता है कि सरकारें पहले भी अच्छी थी, अब भी अच्छी हैं, बस एग्जीक्यूशन में हमें और अपने आप को एफिशिएंट और बेटर करने की आवश्यकता है. लास्ट क्वेश्चन है कि आपसे ज़्यादा योग्य कई कैंडिडेट हैं कतार में, आपका ये सिलेक्शन क्यों किया गया? सर मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर प्लानर, मैनेजर और एग्जीक्यूटर हूँ. एंड सर इसके साथ साथ मुझे लगता है मैं क्विक लर्नर हूँ. आज के समय में हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो नई टेक्नोलॉजी और बदलते समय को जल्दी से अडेप्ट करें और क्विक लर्निंग करें. तो आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट में आपने जो साइंस पढ़ा है उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है?
सर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सर लाइक मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, आई एम ग्रेजुएट इन फिज़िक्स, तो आई थिंक उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. हम जो अब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं. डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं हम. सर ट्रैफिक प्लानिंग कर सकते हैं अपनी फ़िज़िक्स के नॉलेज को यूज़ करके. प्लस सर रिन्यूएबल एनर्जी की आज बहुत ज़रूरत है, तो सर फिज़िक्स का बहुत सारा एप्लीकेशन है उस एरिया में. तो मैम प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? Ma'am, it's basically a motion when we throw an object. So the path it traces during its motion is called a projectile motion. ओके. V इज इक्वल टू आर आई क्या है? विच फॉर्मूला? Ma'am, it's Ohm's law. ओम्स लॉ. आप समझा सकती हैं मुझे ओम्स लॉ? Oh yeah, sure, ma'am. Ma'am, it says that provided the potential is directly proportional to current, provided the resistance remains constant. और कंडीशंस क्या हैं? फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट. Yes, ma'am. The resistance ओके. remains. एंड व्हाट इज F इज इक्वल टू ma? Ma'am, it's force. It's Yes, yes. Newton's second law of motion. ओके. एंड व्हाट इज m एंड व्हाट इज a? Ma'am, M stands for mass and A stands for acceleration due to gravity. ओके. आपसे बात करके अच्छा लगा. आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकती हैं. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. आइए, बैठिए. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ? मैम अच्छा था. क्या लगता है कहाँ पे अभी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है? मैम आई थिंक बेसिक्स पे थोड़ा बेसिक्स तो कोई ज़रूरी नहीं. देखिए अब आपको टाइम भी हो गया है. तो State. मैंने तो ऐसे ही पूछा है. स्टेट, मुझे लगता है यूपी के फैक्ट्स थोड़े आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज वहाँ पे इंटरव्यू समटाइम्स फैक्चुअल हो जाता है, फैक्ट पे ही बात हो जाती है. तो सारे फैक्ट तो याद रखना पॉसिबल है नहीं, बट कम से कम जो चीज़ें बजट में आई हैं या जो स्कीम्स चल रही हैं, एआई पॉलिसी, साइंस को लेकर के क्या पॉलिसी है, जैसे एआई सिटी लखनऊ को बनाया जाएगा, उसके अलावा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के क्या कंक्लूजन्स निकल के आए हैं, वो सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. बजट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे तो तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी. कुछ सवाल जो आपसे पूछे गए, जैसे एक सवाल वो कार्टून का पूछा गया. कार्टून देखना आपको पसंद है तो टॉम एंड जेरी एंड इस पे बात हो सकती है. मुझे लगता है वहाँ पे बात ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं. फेमस कार्टूनिस्ट, एक ज़माने में कार्टून्स के थ्रू जो पूरा एक डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग. लोग, एक अखबार में कॉलम छपता था स्पेशली, जिसमें कार्टून के थ्रू व्यंग्य किया जाता था, व्यवस्था से सवाल किया जाता था. तो वो एक्सप्रेशन के किस राइट के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? क्या उसके ऊपर भी वो सारी बाउंड्रीज लगाई गई हैं जो किसी भी राइट टू एक्सप्रेशन पे लगाई जाती हैं? वो सवाल हो सकता है. कार्टूनिस्ट प्राण के बारे में बात हो सकती है क्योंकि वो बहुत फेमस रहे हैं. कोई ऐसे लोग जिनके ऊपर केस दर्ज हुए हों, कार्टून उन्होंने कोई बनाया हो और विवादित हो गए हों, उन तरीके की चीज़ों पे भी बात होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसको पढ़ लीजिएगा. धर्म के बारे में एक चीज़ एकदम क्लियर रखिए कि धर्मनिरपेक्षता राज्य का मामला है, व्यक्ति का मामला नहीं है. भारत में राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष होने की सलाह नहीं. व्यक्ति थोड़ा ना धर्मनिरपेक्ष है, व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा और दूसरे धर्मों का सम्मान करेगा. तो हम जय राम जी बोलें, सलाम बोलें, आदाब बोलें, वाहे गुरु को याद करें, जिसको भी याद करें. व्यक्ति, संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि सबको अपने अपने धर्मों के पालन का अधिकार है. हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है. तो उसमें राज्य और व्यक्ति में जो डिफरेंस है उसको हमेशा याद रखिएगा कि भाई आपने अगर कोई भी स्लोगन यूज किया तो उसका ये मतलब नहीं आपने राज्य के नियम को तोड़ा है. राज्य किसी धर्म के व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा. इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने धर्म की परंपरा का पालन नहीं कर सकते. ठीक है. दूसरी चीज, जैसे सर ने आपसे सवाल पूछा परंपरा और आधुनिकता. भजन क्लबिंग क्या है? भजन परंपरा है, क्लबिंग आधुनिकता है. होली पार्टी क्या है? होली परंपरा है, पार्टी आधुनिकता है. समझ गई? तो बहुत सारी चीजें जेन जी के वाइब मैच कराने के लिए उनका रूप चेंज किया गया है. कि ऐसे तो मंदिर में जाके कोई कीर्तन करने से रहा, सत्संग सुनने से रहा, तो नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि भजन क्लबिंग, लोग क्लब की फील भजन के थ्रू ले रहे हैं. ये परंपरा और आधुनिकता का संगम है. थोड़ा ठहर के सोचेंगी ना तो सब सवालों के जवाब आपके आसपास हैं. और नहीं आएगा तो फिर तो आई एम सॉरी का विकल्प इज ऑलवेज ओपन. सर ने आपसे सवाल पूछा कि भाई आपके पति, एकदम क्लियर स्टैंड होना चाहिए आपका. आपने कहा कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, वही सही बात है, लेकिन नहीं मानेंगे. ये वो कि पीछे ही कोई पड़ जाए कि नहीं वो नहीं मानेंगे, वो किसी कीमत पे नहीं मानेंगे, क्यों जाओ तो कहते छोड़ दूंगी.
भाई आपके साथ नहीं, इसमें क्या आपको क्या लगता है, इस पे क्या काउंटर सवाल बन सकता है? आप मुझे बताओ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि भाई आप पति को छोड़ देंगी, ऐसा सवाल? तो ये किसने कहा है कि जो है अगर आपका जो है संबंध किसी बेवकूफ़ व्यक्ति के साथ हो जाए तो आप उस संबंध को पकड़ के बैठे रहें? भाई आपके साथ रह के भी अगर कोई व्यक्ति आपकी खुशी का साझीदार बनने के लिए नहीं तैयार है तो उस व्यक्ति को छोड़ना उचित है। तुम्हारे साथ रह के भी जो सोगवार हो, लानत है ऐसे शख्स पर, और 1000 बार हो। पति और पत्नी के संबंध में सारा बलिदान पत्नी ही क्यों करे, पति भी तो करे। 50-50 का मामला है, पार्टनरशिप है, तो 50% एफर्ट उसको भी तो करने चाहिए। तो क्योंकि आपने इतनी मेहनत से इसको पाया है तो आप इसको इसलिए नहीं छोड़ सकती हैं क्योंकि जो है एक व्यक्ति नहीं चाहता है। आपके माता पिता की भी तो उम्मीदें हैं, आपके घर वालों की भी तो आकांक्षाएं हैं, और आपके खुद के भी तो सपने हैं। तो वही पहला मुद्दा जो हर भारत में व्यक्ति सुनना चाहता है कि भाई आप बहुत सहनशील बने और बात करें, लेकिन बात के बाद भी बात ना बने तो फिर बात ना करें। अपना एकदम क्लियर रहिए इस मामले में, इसको लेके कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। महिला सशक्तिकरण समाज में ऐसे थोड़ा ना आएगा। और ये जो केस होते हैं ना कि भाई सिलेक्शन होने के बाद छोड़ दिया, ये अगर 2 महिलाओं के केस होते हैं हमारे समाज में तो 8 पुरुषों के होते हैं, लेकिन 8 पुरुषों की चर्चा ही नहीं होती क्योंकि वो तो स्वतंत्र हैं। ये बात भी कहिए कि सर हुई हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन ऐसी चीज़ें पुरुषों के मतलब पुरुषों के द्वारा भी की गई हैं कि भाई बचपन में बहुत कम उम्र में शादी हो गई, बाद में सफल हो गए तो पत्नी उनको पिछड़ी लगने लगी, उसको छोड़ दिया। आपको भी पता होगा। तो आप कहिए कि सर दोनों तरफ से है। और अगर किसी की पत्नी भी ऐसी हो कि नहीं हम तुम्हें नौकरी नहीं करने देंगे, तो पत्नी को अधिकार नहीं है ये कहने का। और अगर पत्नी ने कह दिया नहीं करने देंगे तो तुरंत पत्नी को छोड़ दिया जाएगा कि मूर्ख है, समझती नहीं है। पर पुरुष के साथ में क्यों नहीं? तो इतना डरने की जरूरत नहीं है इस समाज से। अभी ही नहीं, प्रशासन में भी जाओगी तो हमेशा बोल्ड रहना, एकदम क्लियर स्टैंड कि जो व्यक्ति मेरे इच्छाओं का, मेरे सपनों का सम्मान नहीं कर सकता वो मेरे लिए पात्र नहीं हो सकता। ठीक है। उसके अलावा आपकी जो बाकी चीज़ें हैं, योर एंट्री, ड्रेस, आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग इज परफेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई कॉन्टैक्ट में भी मेक श्योर जिससे बात करिए उसी को देखिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी कोई सवाल आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिए मेरे फेमिनिज्म के भाषण के बाद। मैम लाइक मैंने लॉ भी किया है बट मैंने उसे कहीं तो मेंशन फिर नहीं मत किया। करिए, आप नहीं किया है तो जाने दीजिए। तो आप सारे पदों के लिए पात्र है ना, लाइक वो रजिस्ट्रार एंड एवरीथिंग, मैम वैसा कुछ नहीं नहीं है हूँ। ना? नहीं है। किस नहीं। किस पद के लिए हैं? मैम 18 पोस्ट हैं जिनके लिए मैं एलिजिबल हूँ। हाँ, तो उनमें से कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है। अगर नहीं मेंशन किया तो आप जाने दीजिए, फिर क्यों, समय भी नहीं बचा है ना। अब आप ओपन करेंगे, उतनी तैयारी का टाइम भी नहीं है। तो ठीक है, जितना पढ़ा है, ग्रेजुएट होना जरूरी है, वो आप हैं, उसमें क्या वो है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।